CBS classes. Today we are going to study Social Studies, Standard 9th, History, Chapter number 3, Movements Towards a New World, Part 1. Chapter number 3, Movements Towards a New World. After the World War I, how did the world came up to? With the new world, we have to start with this chapter. In this, we are going to study about how did the world come up after the First World War. Global trends between the two world wars. After the First World War, people became economically poor. Financially, they became very poor. The immediate government in powers were unsuccessful in improving the conditions. The government that were in power, वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको वो चेंज कर सके या इम्प्रूव कर सके. पीपल लॉस्ट ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी से पूरी तरह विश्वास उठ गया था. डिक्टेटरशिप बिकेम इन सम कंट्रीज. डिक्टेटरशिप में क्या होता है? इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप हैज़ द एब्सोल्यूट पावर्स. पर्टिकुलर एक इंसान है या छोटा सा ग्रुप जो गवर्नमेंट में हैंडल ऑन कर रहा है, उसके हाथ में पूरे पावर्स होते हैं. डिक्टेटरशिप बिगैन इन सम कंट्रीज व्हिच बिकेम द ड्राइविंग फोर्स फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. लेट्स स्टडी अबाउट द फॉलोइंग सीरीज ऑफ इवेंट्स इन दिस रिस्पेक्ट. First is the fascism in Italy. Fascism means controlling the government with absolute power or absolute force, जबरदस्ती से. Next is Nazism in Germany. Nazism एक मेथड है जो नाजीज कम्युनिटी थी वो फॉलो करती थी. मिलिट्रिज्म इन जापान एंड ग्लोबल डिप्रेशन 1929 to 32. ग्लोबली पूरे लोग जो है, सारे लोग वो डिप्रेशन में चले गए. फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द फैसिज्म इन इटली. In the First World War, Italy was one of the sides of the winning nations and fought for those nations. In the First World War, Italy was on the side of the winning nations. जो इटली था, जो जीतने वाले nations थे, उनमें से वो था. And it fought for those nations. उनके nations के लिए वो लड़ा था. It incurred a massive expenditure of $12 billion, lost lives of 6 lakh soldiers. 6 lakh soldiers उसके मारे गए थे. उनको एक्सपेंडिचर खर्चा भी कितना हुआ था? $12 billion का. Yet the other winning nations took over the choicest territories, ignoring Italy. इटली को छोड़ के बाकी जिसको जो नेशंस चाहिए थे वो ले रहा था. Italy was angry and frustrated, जिससे वो बहुत गुस्सा हो गया और चिड़चिड़ा हो गया. फ्रस्ट्रेटेड, चिढ़ जाना. In the nationalistic feeling was born for which the Italians considered its government was responsible. धीरे धीरे जो नेशनलिज्म था वो कम होता जा रहा था, जिसके लिए जो वहाँ के लोग थे, इटालियन लोग थे, जो वहाँ के सिटीजन्स थे, वो बोल रहे थे गवर्नमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन ईगर टू एवेंज दिस नेशनल ह्यूमिलेशन. एवेज होना मतलब टेक रिवेंज, बदला लेने की भावना उन लोगों में आ गई. ह्यूमिलेशन मतलब बेइज्जती होना, इंसल्ट होना किधर. As soon as possible, in order to salvage the Italy from such dire situations, Benito Mussolini launched the fascist party. जो बेंटिनो मोसलिनी थे, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था फैसिस्ट पार्टी. He adopted a bundle of sticks and an axe. उसका सिंबल था, जैसे कोई भी पार्टी अपना सिंबल लगाती है, अपना स्लो, जैसे बीजेपी है तो उनका वो लोटस का है, कांग्रेस का है तो उनका पंजा है, तो वैसे दिस वाज इनका सिंबल क्या था? अ बंडल ऑफ स्टिक एंड एन एक्स of the Roman emperors as the symbol of this party. Fascism was evolved for Italian word fascigri. इसका जो मीनिंग था, fascism has evolved, उसमें से आया था the Italian word fascigri, which means, उसका मतलब क्या है? Absolute control of the state on all the things. पूरे स्टेट का पूरी चीज़ों पर अपना कंट्रोल रहेगा. Mussolini's maxim was the one party, one leader. उसका जो सोच था वो क्या था? one party and one leader. He gave military training to his party volunteers who wore black uniform. उसने अपने पार्टी के जो वॉलंटियर्स थे उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दिया था. एंड दे यूज्ड टू वेयर अ ब्लैक कलर यूनिफॉर्म.
After coming to power, Mussolini captured the Rhodes and the Dodicantes Islands from Turkey. He also won Albania, Asbesnia and Fiume port in 1942. After the victories of Mussolini snapped all the ties. Snaps मतलब निकाल देना, छूटा पड़ जाना उससे. After these victories, the Mussolini snapped all the ties with the League of Nations. League of Nations से बिल्कुल उसने अपने आप को अलग कर लिया. And joined the Rome, Berlin, Tokyo axis. Thus, Italy became responsible for the Second World War. इसकी वजह से वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ गई कि वही एक रीजन बन गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए. नेक्स्ट इज द नाजिज्म इन जर्मनी. जर्मनी हैड लॉस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो हार चुका था. इट वॉज इकोनॉमिकली रूइंड यानी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया. यहाँ बहुत बुरी हालत थी इकोनॉमिकली. पेरिस पीस प्रोसेस हैज कंपेल्ड जर्मनी टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्सेली. ये हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जर्मनी के पास से कैसे गन पॉइंट पे उन्होंने ये पीस प्रोसेस साइन करवाया था. दैट वाज द ट्रीटी ऑफ वर्सेली. जर्मन्स वर एक्सट्रीमली एंग्री विद द अनजस्ट ट्रीटी. वो जो ट्रीटी एग्रीमेंट थी वो उससे बहुत गुस्सा थे. वो अनफेयर थी, उनके लिए प्रॉपर नहीं थी. Adolf Hitler joined the National Socialistic Workers' Party in 1919. This party came to be known as the Nazi Party. Adolf Hitler के बारे में हमने सबने पढ़ा है, जाना है, सुना है. So he came and he joined this National Socialistic German Workers' Party, and this party was then came to be known as the Nazi Party. The Nazi philosophy included the nationalism and socialism. इसका जो philosophy, इसकी जो सोच थी वो क्या थी? Nationalism and socialism. After the death of the German president Hindenburg, Hitler assumed the post and established his dictatorial rule. वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जर्मन के, जो वो एक्सपायर हो गए when he died, उसके बाद उस पोस्ट को हिटलर ने लिया था. and he established his dictatorial rule. डिक्टेरियल जो हमने पढ़ा था, एक ही हाथ में पावर्स आ जाते हैं सारे. He adopted the stern and aggressive policies and led the Germans towards the narrow nationalism. उसने सारा एग्रेसिव जो पॉलिसीज थी वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट थी, एग्रेसिव थी, बहुत ज़्यादा ना गुस्से वाली, या बहुत ज़्यादा वो जिसपे बहुत उसको कंट्रोल नहीं रहता हो, इतने ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी हो जाती थी उनकी. विच लेड द जर्मन्स टुवर्ड द नैरो नेशनल. जिसकी वजह जो उनके नेशनलिज्म की जो थॉट थी, जो सोच थी नेशनलिज्म नेशन के लिए, वो बिल्कुल छोटी हो गई, नैरो कर दी उसने. जर्मन्स कंसिडर हिटलर एज द फ्यूरर. फ्यूरर मतलब सेवियर, एक वही है जो जर्मनी को बचा सकता था. Nazi soldiers wore a blue military uniform and stuck a red strip on their shoulders and wore a symbol of swastika. जो हम गणपति का स्वास्तिक बनाते हैं ना, वो उन लोगों ने लगाया हुआ था. Hitler's authorization and the militarist nature became the obvious after coming to power. जैसे ही वो पावर में आ गया, उसका जो मिलिट्रिज्म या बहुत स्ट्रिक्ट नेचर था वो एकदम लागू हो गया. His main aim was that the emergence of Germany as a major power. इसका main aim क्या था? जर्मनी के पास सबसे ज़्यादा powers होने चाहिए. In the name of purification of German race, his policies were targeted and exterminating the Jews, gypsies and mentally challenged people. जर्मनी को प्योरिफिकेशन करना है, उसको पवित्र करना है. His policies were targeted और at the exterminate destroying completely, पूरी तरह निकाल देना है. किनको? ज्यूज को, जिप्सीज और मेंटली रिटार्डेड पीपल, उनको पूरी तरह जर्मन से निकाल देना है. By the end of the Second World War, the innumerable European Jews lost their lives, which was known as the Holocaust. Holocaust क्या होता है? It is an event in which there was a lot of destruction of many people were killed. उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे. That was known as the Holocaust. Hitler's expansion, military action against the neighboring countries and the policy of exterminating certain groups led to the Second World War. इसी सोच को लेकर वो जिस तरह वो आगे बढ़ रहा था, this led to the Second World War and became the important reason for the same. बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन हो गया था हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए. नाउ मिलिट्रिज्म इन जापान. अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ वेलेस्ली,
जापान गॉट द बेनिफिट ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ चाइना, उनको चाइना मिल गया. इंग्लैंड एंड फ्रांस डिस्ट्रीब्यूटेड मेनी ऑफ द रीजन्स ऑफ जर्मनी बिटवीन देम. इंग्लैंड और फ्रांस ने क्या किया, जर्मनी को अपने हिसाब से वो लोग ने आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. जापान वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड विद दिस. जापान उससे थोड़ा नाराज हो गया कि मुझे कुछ भी नहीं दिया, आपस में पूरा जर्मनी बांट लिया. In 1921-22, Washington met. Japan had to agree to have only 35% of the youth, 35% of the English and American naval force. जब वॉशिंगटन जब जापान से मिला तो ही हैड अग्रीड, उन्होंने माना कि ये हैव ओनली 35% ऑफ इंग्लिश अमेरिकन नेवल फोर्स, आपके पास सिर्फ 35% का ही नेवल फोर्स होगा. जापान हैड ऑल्सो वेकेट द आइलैंड्स ऑफ द सैकेलिज्म एंड साइबेरियम, उसको वहाँ के जो आइलैंड्स है वो भी वेकेंट यानी खाली करने पड़े. द जापानीज यूथ वॉज वेरी एंग्री एट दिस टाइम. जो जापानीज के जो जवान थे, यंग पीपल थे वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए. ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वाज एन इलेक्शन इन जापान एंड द पार्टी सपोर्टिंग द मिलिट्रिज्म गॉट द मेजोरिटी. उस वक्त जापान में इलेक्शंस चल रहे थे, तो जो पार्टीज मिलिट्रिज्म को फॉलो कर रही थी उनको ज़्यादा मेजोरिटी मिली. द मिलिट्री नेशनलिज्म ऑफ जापान अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म. जापान डिड नॉट गेट अ परमानेंट प्लेस इन लीग ऑफ नेशंस. लीग ऑफ नेशंस में उसको परमानेंट जगह नहीं मिली. द वेस्टर्न कंट्रीज कुड नॉट स्टॉप द इम्पेरियलिस्टिक एक्टिविटीज ऑफ जापान. इम्पेरियलिस्टिक क्या होता है? इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ द लार्जर कंट्रीज बाय टेकिंग ओवर द पुअरर और द वीकर कंट्रीज. जो पुअर कंट्रीज है या वीक कंट्रीज है उसको अपने अंदर ले लेना, दैट इज कॉल्ड एज इम्पेरियलिस्टिक. जापान कैप्चर्ड द मैंचूरिया and established the Manchukuo government. Also it captured Korea, Mongolia, Shattung and some provinces of China. ये चीज़ें, ये जो countries थी जापान ने अपने कंट्रोल में ले ली. It improved its relation with German and Italy and lose its strings of imperialistic. उसने क्या किया, सारा इसमें अपने कंट्रोल में लेता गया. उन्होंने अपने रिलेशन जर्मनी और इटली के साथ अच्छे कर लिए और जो इम्पेरियलिस्टिक जो वो फॉलो अप कर रहे थे उसके ऊपर थोड़ा लूज हो गए. नाउ ही वाज नॉट बिहाइंड द पुअर कंट्रीज और वीकर कंट्रीज. आफ्टर द एम्परर मेजी, एम्परर हिरोहितो also encouraged these activities of Japan. Thus Japan snapped all its ties with the League of Nations. उन्होंने भी फिर धीरे धीरे करके लीग ऑफ नेशन से सारी अपनी जो उनके कनेक्शंस थे वो तोड़ दिए. ग्लोबल डिप्रेशन 1929-39. The heads of most of the European countries had briefed that with the end of the First World War, even the post-war problems of the world will come to an end. तो लोग क्या सोचते हैं कि अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, अभी जो उसके बाद की जो प्रॉब्लम्स आएगी वो भी हम लोग ने खत्म कर दी, विल कम टू एन एंड, अब सब ठीक हो जाएगा. बट दिस प्रूव्ड रॉन्ग, पर ये गलत साबित हुआ. सडनली अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स बिगैन टू बी सोल्ड इन द वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट, कॉजिंग द स्टॉक मार्केट टू क्रम्बल. उन लोग ने क्या देखा, लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स, बहुत बड़े नंबर ऑफ शेयर्स, बहुत ज्यादा शेयर्स जो है वो बिक गए इन द वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट, जिस पूरे स्टॉक मार्केट में खलबली मचा दी. दिस वॉज कॉल्ड द वॉल स्ट्रीट क्राइसिस बाय द क्रिटिक्स. इस चीज को क्या नाम आया, वॉल स्ट्रीट क्राइसिस, ऑन 24th of October 1929. This crisis shook the whole world and shattered the economic conditions of the nations. पूरा वर्ल्ड इससे बिखर गया, शैटर्ड यानी बिखर गया, पूरी सबकी इकोनॉमिक कंडीशन जैसे तितर बितर हो गई. गिविंग द बर्थ टू द ग्रेट ग्लोबल डिप्रेशन, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिप्रेशन में, सारे नेशंस जो थे डिप्रेशन में आ गए कि अब आगे कैसे होगा. मोस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर अफेक्टेड बाय दिस. इवन अ सुपर पावर लाइक द ग्रेट ब्रिटेन हैड टू सैक्रिफाइस इट्स पॉलिसी. जो ग्रेट ब्रिटेन सुपर पावर था उसको भी अपनी पॉलिसी छोड़नी पड़ी. कीपिंग गोल्ड रिजर्व अगेंस्ट द करेंसी पाउंड, जो गोल्ड वो लोग रिजर्व्स में रखते थे पाउंड्स के बदले, वो भी उसको निकालनी पड़ी. दिस अफेक्टेड द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल ट्रेड इंडस्ट्री. Prosperous nations like America also had to impose strict measures.
अमेरिका को भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस इसके लिए लेने पड़े। ग्लोबल ट्रेड वॉज रिड्यूस टू हाफ, जो ग्लोबल ट्रेड था दूसरी कंट्रीज के साथ जो ट्रेड हो रहा था वो बिल्कुल हाफ हो गया, आधा हो गया। एंड thus the second world war started giving its outline, यहाँ से वो शुरुआत हो रही थी, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होगा। Now second world war in 1939 to 1945, what were the factors that led to the second world war? The seal for the World War II had been shown in the Treaty of Versailles. ब्रेसली ट्रीटी जो उन लोगों ने साइन की थी, एक्चुअली वहीं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच वहीं लग गए थे कि अब इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होगा। पेरिस पीस प्रोसेस हैड डिप्लीज्ड मेनी नेशंस, जो पेरिस पीस प्रोसेस हुआ था उसने बहुत सारे नेशंस को डिसप्लीज किया था या नाखुश किया था। द इवेंट्स दैट हैपेंड आफ्टर दैट लेड टू द सेकेंड वर्ल्ड war. So dear children, let us study the factors responsible for the World War II. Causes of the World War II. What were the reasons or what were the causes of the World War II? Many a times it has been asked as a long answer, so you can just pay attention over here. Fierce nationalism. Fierce मतलब aggressive, जबरदस्ती का किया करा है। After the First World War, fierce nationalism developed in Germany, Japan and Italy. Germans could never forget the overcome the Treaty of Versailles. जो जर्मन्स थे वो उसमें से बाहर ही नहीं है, जो उनके पास ट्रीटी जबरदस्ती साइन करवाई गई थी वो उसमें से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रहे थे। Consequently, Hitler captured some of the provinces of Austria and Czechoslovakia, following his Nazi philosophy that Germans must get all those provinces where Germans were staying. ऊपर से हिटलर ने जो उसके प्रोविंसेस वो कैप्चर कर लिए थे, ले लिए थे, ऑस्ट्रिया एंड ज़ेकोस्लोवाकिया, उसकी नाजी फिलोसफी अडॉप्ट करते हुए। एंड जर्मन्स मस्ट गेट ऑल दोज प्रोविंसेस वेयर जर्मन्स वर स्टेइंग, जहाँ पर भी जर्मन्स रहते थे उनको वहाँ पर से हटना पड़ेगा। इटली कुड नॉट फॉरगेट दैट इट वाज इग्नोर्ड इन द ट्रीटी ऑफ वेर्साइली। इटली का क्या प्रॉब्लम आया था कि उसको ट्रीटी ऑफ वेर्साइली में पार्टी नहीं दिया था, कोई हिस्सा ही नहीं, उसको बुलाया ही नहीं था उसके लिए। Under the leadership of the fascist party, Mussolini started his fierce nationalism and adopted the imperialistic policies. Imperialistic जैसे मैंने पहले बताया, poor और weaker nations को अपने कंट्रोल में ले लेना। On the other hand, Japan too had gave an imperialism, thus the world peace was in danger. अब यहाँ हर कोई लगा हुआ है, जो पुअर है, जो वीकर सेक्शन है, उसको अपने अंडर में लेके अपना जो पावर है वो बढ़ाते जाए। एंड दिस वॉज के वर्ल्ड पीस, जो विश्व शांति थी, इसमें ये खतरे में पड़ गई। सेकेंड वॉज द ग्रुपिज्म, अब हर कोई अपना अपना ग्रुप बनाया जा रहा है। सिंस फ्रांस वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जर्मनी जो था, फ्रांस जर्मनी से बहुत डरता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। इट एंटर्ड इनटू द ट्रीटी विद द बेल्जियम, पोलैंड एंड रोमेनिया एंड ज़ेकोस्लोवाकिया, तो उसने इन बाकी लोगों के साथ की ट्रीटी साइन की, भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। Italy signed a treaty with Czechoslovakia, Yugoslavia, Romania, Hungary, Greece, Turkey and Australia. इटली ने इन लोगों के साथ अपना ग्रुप बना लिया। Russia signed a treaty with Germany, Turkey, Lithuania and Iran. रशिया इन लोगों के साथ जुड़ गया, या भी अलग अलग ग्रुप्स बन रहे हैं। Italy formed the Rome, Berlin, Tokyo Axis group with the support of Germany and Japan. England and France formed another group with the democratic values. जर्मनी साइंड एंड नॉन एग्रेशन ट्रीटी विद रशिया, उसने उसके साथ कौन सी करी? नॉन एग्रेशन, मैं आपके साथ नहीं होने वाला, मैं अपना ही रखूंगा। Thus the whole atmosphere led to the spread in the whole world. This factor too gave an impetus to the impetus, यानी एक रास्ता या एक बढ़ावा इसने भी दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ लोग बढ़ने लगे। नेक्स्ट वॉज द मिलिट्रिज्म। On one side, efforts were made to maintain peace after the First World War, whereas on the other side, European nations were competing for ammunition. Ammunition क्या होता है? गोला बारूद, bullets. उनके लिए, उनको अगर वॉर के लिए जाना है तो उनको तो बारूद तो चाहिए ना। The production of more and more weapons increased in all European nations. अब इसका प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है यूरोपियन नेशंस। War weapons better than the others were being manufactured. अब यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन बनेगा कौन ज़्यादा वॉर मटेरियल अच्छे से बना रहा है, वॉर वेपन्स। सम नेशंस लाइक द रशिया एंड जर्मनी बिगैन कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग। रशिया और जर्मनी ने क्या किया? सबको कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग दो।
ऑल नेशंस बिगैन इंट्रोड्यूसिंग मोर मैन इनटू नेवी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेवी में डाल रहे हैं, एयरफोर्स, आर्मी, सब इसमें लोगों को डाल रहे हैं. इन द ईस्ट Japan increased its military force. Finally, the World War II had been declared. Even England and France tried to equip themselves with the war weapons. अब इंग्लैंड और फ्रांस ने भी अपने आप को इक्विपमेंट्स के लिए तैयार कर लिया वॉर में लड़ने के लिए. फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन. दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट लेड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जो लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था कि हमें वर्ल्ड में पीस लाना है, उसका जो वो मोटो था वो फेल्ड अप हो गया. इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश पीस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म, बट नाइदर इट कुड बिकम द सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सोवरेनिटी ओवर द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, नॉर इट डिड हैव एनी ओन आर्मी टू मेक द नेशंस फॉलो इट्स प्रिंसिपल. ना ही अपने आप को एक सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन बना पाया और ना ही इनके पास अपनी खुद की एक आर्मी थी जो नेशंस को इस चीज़ को फॉलो करने के लिए कंट्रोल कर सकती. मेंबर्स नेशंस ऑफ द ऑब्लाइज टू टेक देयर प्रॉब्लम्स टू द लीग ऑफ नेशन. ऑब्लाइज यानी वो रेडी नहीं थे, लीगली दे वर नॉट रेडी टू टेक देयर प्रॉब्लम्स टू द लीग ऑफ नेशंस और टू एक्सेप्ट द जजमेंट. ना ही वो अपनी प्रॉब्लम्स उनके पास ले जा रहे थे और ना ही उनके जजमेंट्स को वो एक्सेप्ट कर रहे थे. By many nations had moved out to the League of Nations, जिससे क्या हुआ, कई सारे जो nations उसमें जुड़े थे वो धीरे धीरे वहाँ से अलग हो गए. They moved out from League of Nations. Initially Russia and Germany snapped their ties with the League of Nations. Initially शुरुआत में रशिया और जर्मनी ने ही सबसे पहले अपने उनके जो रिलेशंस थे वो तोड़ दिया या they break out their knots with the League of Nations. Later, Italy and Japan moved out because of Italy had captured the Albania, Japan and attacked Manchuria. German had snatched away some provisions of the Czechoslovakia. इन्होंने भी अपने आप को वहाँ से अलग कर दिया. कब उन्होंने अल्बानिया को और जापान को अपने कंट्रोल में ले लिया. They had captured these and Germany had snatched away some provinces of Czechoslovakia. Still the League of Nations could not do anything. इतना सब होने के बाद भी League of Nations कुछ नहीं कर पा रहा था. The greed for power almost several nations became stronger. अब सबके अंदर एकदम लालच आने लगी, ग्रीड आ गई, हम लोग ज़्यादा पावरफुल बने. तो ये सारे नेशंस में बढ़ता गया. स्ट्रॉन्ग इन द लीग ऑफ नेशन. जो लीग ऑफ नेशंस के जो नेशंस जो जुड़े थे सब अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा पावरफुल बनाने में लग गए. इट कुड नॉट स्टॉप द ग्रुपिज्म. तो उसकी वजह से क्या होता है, ये ग्रुप्स बन रहे थे. दिस वॉज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन. ये सबसे बड़ा फेलियर था कि उसके खुद के नेशंस आपस में ही लड़ पड़े. ये हमें स्ट्रांग बनना है, हमें स्ट्रांग बनना है. लीग ऑफ नेशन के एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको मिलकर वर्ल्ड पीस लाना था, पर यहाँ तो नेशंस आपस में अपने आप को स्ट्रांग बनाने लग गए. ट्रीटी ऑफ वेलेस्ली. द ट्रीटी ऑफ वेलेस्ली गॉट इट्स फॉर्म इन द पेरिस पीस प्रोसेस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सिंस जर्मनी वॉज फाउंड responsible for the war, it had to pay 6.5 billion pounds as a war fine. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके लिए जर्मनी रिस्पॉन्सिबल था, तो उसको वहाँ का फाइन पे करना था. डेट वॉज नोन एज द वॉर फाइन. वो था 6.5 बिलियन पाउंड्स. Its rural provisions was taken away. Rhine River had to be open for international sea route. Thus, such an unfair and humiliating treaty was forcibly imposed on Germany. उनको अपना प्रोविजंस दे देना पड़ा, अपनी रिवर ओपन करनी पड़ी इंटरनेशनल सी रूट के लिए. तो ये जो अनफेयर और इतना ह्यूमिलेशन उसको फेस ऑन करना पड़ा, वॉज फोर्सिबली इम्पोज्ड, जबरदस्ती उस पर डाला गया था जर्मनी पे. द जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ वेस्ले एज द पीस ऑफ पेपर एंड अनाउंस्ड टू रिजेक्ट इट. तो जर्मन डिक्टेटर हिटलर, उसने बोला ट्रीटी ऑफ वेलेसी एक पेपर से ज़्यादा कुछ नहीं है और उसको मैं रिजेक्ट करता हूँ. आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट एज अ ट्रीटी. imperialistic ambition of the Adolf Hitler. Hitler laid the foundation of the Second World War. Hitler was the one who laid the foundation. जिसने इसकी जो बोलते ना जड़, यही था. He had fierce nationalistic and militaristic nature. बहुत ही aggressive, बहुत ही strict, बहुत ही cruel था वो. That is why he wished the unity, stability and prosperity of the Germany at any cost.
हर कीमत पर उसको जर्मनी में यूनिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए एंड प्रोस्पेरिटी चाहिए, जिसके लिए वो कुछ भी कर जाता था। द फर्स्ट विक्टिम ऑफ हिज इम्प्रेसिव वाज द ऑस्ट्रेलिया, उसका फर्स्ट शिकार था ऑस्ट्रेलिया। Along with German army, he entered Austria on 12th of March in 1938. जर्मन आर्मी के साथ उसने ऑस्ट्रिया में एंट्री ली 12th of March in 1938. On the very next day of the Munich Convention, Germany had captured Czechoslovakia on the 1st of October 1938. After it had captured the mammal port of Lithuania in March 1939. Thus a grand German nation was created by Hitler. इस तरह उसने अपना जो नेशन था वो बहुत ही बड़ा एक्सपैंडेड बना दिया। His imperialistic policy was the main cause of the Second World War. इसका ये जो था ना सोच, एक पॉलिसी वीकर सेक्शंस को अपने अंदर ला के अपना अंदर जो पूरा उसने जर्मन को इतना स्ट्रांग बनाया, ये जो इसके imperialistic पॉलिसी, यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेन रीजन था, became the main cause for the Second World War. German attack on Poland. Above mentioned causes had made the whole world to sit on a heap of ammunitions. Ammunitions यानी गोला बारूद। ऐसा लग रहा था कि सारे जो है ना, अब जो ऊपर के सारे causes थे, पूरे वर्ल्ड को एक बारूद के ढगले पे बिठा दिया, एक जरा सी चिंगारी नहीं लगी और बूम। A small spark could blow up the whole world, and this spark was the German attack on the peaceful Poland. और वो एक चिंगारी थी जर्मन का अटैक पोलैंड पर। Thus the World War II had begun. Britain and France warned the Germany to stop the war immediately, but Germany ignored the warning. ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को वार्न किया था कि आप इस लड़ाई को यहीं रोक दो, इस वॉर को यहीं रोक दो, बट जर्मनी डिड नॉट स्टॉप। उन्होंने उनकी वार्निंग को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। Hence the Britain and France plunged into the war. Consequently the war spread in the entire world. पूरी दुनिया में ये वॉर आगे बढ़ गया। वर्ल्ड वॉर टू एन आउटलाइन, कैसे वो बाहर आया? With the commencement of the World War II, the world was again divided into groups. World War II के चलते सारी दुनिया के पांचों वो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे। On one side was the group of the elite nation led by the England and France, and on the other hand were the Axis nations comprising of the Germany, Italy and Japan. Besides these, some of the factors which were drawn mentally had entered into this. बस वॉर ही करना है, वो मेंटली उसके लिए ही तैयार थे। As a result, America gave up on the neutral stand and relented. और जापान ने क्या किया? Axis ने कम Italy, Japan. Besides this, some of the other factors with the war-driven mentality had entered into the Japan attacked the American Navy at the Pearl Harbor. जो जापान था उन्होंने उनके नेवी में अमेरिकन नेवी पे अटैक किया था पर्ल हार्बर पर। हार्बर है जहाँ पर शिप्स आती है वो। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, अमेरिका, यहाँ पर अमेरिकन नेवी पे अटैक हुआ तो अमेरिका ने बैक आंसर करते हुए क्या किया? एज अ रिजल्ट अमेरिका गेव अप इट्स न्यूट्रल स्टैंड एंड रिलेटेड इट जॉइन द एलीड नेशंस। उन्होंने अपना जो न्यूट्रल फॉर्म था कि मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ वॉर, वो न्यूट्रल खड़ा था। इसकी वजह से जब नेवी अमेरिकन नेवी पे अटैक हुआ तो उसके बदले में उन्होंने एलाइड नेशंस को ज्वाइन कर दिया। दिस मेड इट मोर स्ट्रॉन्गर। अब एलाइड नेशन ज्यादा स्ट्रांग हो गए। व्हेन द वॉर वाज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग, जब वॉर पूरी बोलते ना पूरी चाम पर था, अमेरिका ड्रॉप द एटम बॉम्ब्स ऑन द टू जापानीज सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी इन ऑर्डर टू स्टॉप जापान फ्रॉम मूविंग फर्दर। जापान को आगे रोकने के लिए अमेरिका ने क्या किया था? उसकी दो सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी पे बॉम्ब डाले थे। 1,24,000 जापानीज सिटीजन्स लॉस्ट देयर लाइव्स एंड देयर वाज एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन। पूरी तरह सब कुछ खत्म हो चुका था। जापान सरेंडर्ड एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड। जापान ने लास्टली अपने आप को सरेंडर कर दिया on 11th of August 1945 and the Second World War came to an end. So friends, here we end up with part 1. Thank you. In part 1 we have already studied about the World War II.
Now in this session we will study about what were the effects of World War II. That was the immediate effects. What happened immediately after the World War II. Now first was the economic effects. This was also asked in many a times as in question answer. What were the effects of World War II? The World War has caused in horrendous destruction in the world. बहुत ही बुरी तरह destruction पूरी दुनिया में छा गया. All the involved nations had incurred huge expenses. जो भी नेशंस इसमें इन्वॉल्व हुए थे सबको बहुत खर्चा हुआ था. एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हुए थे. अमेरिका हैड स्पेंड $350 billion एंड अदर नेशन हैड स्पेंड मोर देन $1,000 billion. अमेरिका कोई $350 million का एक्सपेंडिचर हुआ था, whereas the other nations had $1,000 billion. प्रॉपर्टी बोथ द सेम हैज बीन डिस्ट्रॉयड. ये तो फाइनेंशियली आपको इतना नुकसान हो, प्लस प्रॉपर्टी भी इतनी ज़्यादा नुकसान में गई. इंग्लैंड लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी वर्थ 2,000 crores एंड अबाउट जर्मनी कांट इमेजिन. जो इंग्लैंड थी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी कितनी 2,000 crore की उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, और जर्मन का तो कोई हिसाब ही नहीं लगा पाया. इतना हम लोग इमेजिन भी नहीं कर पाए, इतना उसको नुकसान हुआ था. The nations of the world gave more importance to the production of arms and armaments. So there was the scarcity of the things for the basic needs. World War II में सारे नेशंस थे वो गोला बारूद के प्रोडक्शन के लिए सब हो रहा था, तो उसकी वजह से जो बेसिक नीड्स, जो ज़रूरत की चीज़ें बेसिक की हमको चाहिए, उसका प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गया था. प्रोडक्शन रिड्यूस, इन्फ्लेशन इंक्रीज, पीपल वर स्ट्रगलिंग फॉर लाइवलीहुड. अब कुछ बचा ही नहीं, बेसिक चीज़ें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो नाउ पीपल वर स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. अब कैसे आगे बढ़े, अपनी रोजमर्रा के लिए पैसा तो चाहिए, तो वो कहाँ से कमाएंगे. देयर वाज स्कैर्सिटी ऑफ नेसेसिटी गुड्स इन द मार्केट. द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल वाज स्कैटर्ड. स्कैर्सिटी ऑफ नेसेसरी गुड्स, जो नेसेसरी चीज़ें हैं उसकी कमी होने लगी. एंड द इकोनॉमिकली पीपल बहुत ज़्यादा बिखर गए, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी. एज a result, the nations of the world were pushed into an economic depression, जिससे क्या है पूरी दुनिया इकोनॉमिकली यानी फाइनेंशियल डिप्रेशन में चली गई. There was the major changes in the world policies and economics. Second point is the communism in China. Many nations of the world were impressed by the way Russia had made a fast progress with the communistic measures. यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, बहुत सारे लोग थे जो रशिया के इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए थे, प्रभावित हुए थे. कम्युनिज्म क्या होता है, दैट इज टू क्रिएट अ क्लासलेस सोसाइटी. ऊंची कास्ट, नीची कास्ट, ये सब नहीं चाहिए. फिलहाल सिर्फ एज अ वन नेशन यू हैव टू वर्क आउट. With the Bolshevik revolution, China too was impressed. जापान had become the weak after Second World War. जापान बहुत ज़्यादा वीक हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. Under these circumstances, its control over China has receded. जो चाइना के ऊपर उनका कंट्रोल था वो भी कम हो गया. Taking the advantage of this, Mao Zedong established the communist rule at the end of the revolution in China. Lastly, फिर चाइना में भी हमने कम्युनिस्टिक रूल ले आए. The beginning of the Cold War, that is the long-term effects. After the World War II, the world was divided into two superpowers. That is the America and the Russia. ये दो सुपर पावर्स थे जिसमें पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया था. During the war, both the nations were friends. जब वॉर चल रहा था तब ये दोनों फ्रेंड्स थे. But after the war, the difference of opinion between them went on increasing. दोनों की सोच, नजरिया अब बदल गया, तो उनके बीच जो ये डिफरेंसेस आ रहे थे वो भी बढ़ते जा रहे थे. Thus, the Democratic America and the Communist Russia became mutually opposite groups. म्यूचुअल यानी मतलब इन दोनों की अब सोच नहीं मिल रही थी, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े थे. Other small nations of the world joined these two groups according to their convenience. और जो बाकी नेशंस थे, छोटे छोटे नेशंस थे, वो अपनी कन्वीनियंस यानी अपनी जो कंडीशन थी उसके हिसाब से वो ज्वाइन ऑन कर रहे थे. या तो वो रशिया को ज्वाइन कर रहे थे या तो वो अमेरिका को ज्वाइन कर रहे थे. द वॉर ऑफ द वर्ड्स एंड द वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज दैट बोथ द सुपर पावर्स इनिशिएटेड इन ऑर्डर टू सपोर्ट और अपोज ईच अदर्स ओपिनियन created the atmosphere of Cold War.
इसमें क्या बोलते हैं वो लोग के जो द वॉर ऑफ वर्ड्स, बोल के जो हम लड़ते हैं ना, एक तो उन्होंने वॉर से आपस में लड़ लिया, दूसरा था जो हम बोल के किसी को हर्ट ऑन करते हैं या बोल के हम अपनी आइडियोलॉजीज से हम दूसरे को हराते हैं, उसमें ये दोनों सुपर पावर्स ने इनिशिएट किया था इन ऑर्डर टू सपोर्ट दी ऑपोज ईच अदर। तो वो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बोलते ही दिख रहे थे, एंड सच क्रिएटेड दी atmosphere of the Cold War. Many a times the situations for the Third World War seem to be created. कई बार ऐसा भी हो रहा था कि इस तरह से किसी और के बारे में इतना बोलना या किसी दूसरे को इतना नीचा दिखाना हो रहा था कि ऐसा होता कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए। Next is about the United Nations. This is the emblem of the United Nations. Many a times the picture has been asked that identify the picture that is the emblem of the United Nations. At the end of the First World War, the League of Nations was formed in order to establish the world peace. World War 1 के बाद League of Nations बनाया था world peace बनाने के लिए. But the fact that the World War 2 occurred mean the League of Nations was a failure. But World War 2 हुआ मतलब League of Nations total fail था. At the end of the World War 2, on 24th of October 1945, the United Nations established with the purpose of peace, security and coexistence in the world. Its headquarters was in New York. Now it came the United Nations. जब World War II खत्म हुआ 24th October 1945 में, तो जो United Nation बनाया गया था with the purpose of peace, security and coexistence in the world. Its headquarters was in New York. ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई, दिस इज द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स. अमेरिकाज एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश द यूनाइटेड नेशंस हैज ऑलरेडी बिगन फॉर द टाइम इट जॉइन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जो यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश करना था वो पहले से ही हो गया था कि बाद में वॉर के बाद ये पीस सेशन लाने के लिए उनको यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश करना ही पड़ेगा. द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट मेड 4 important announcements regarding the freedom while giving his message to the American Congress with the intention of human freedom, peace and security. तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने पहले से ही 4 important बातें उनको बताई थी रिगार्डिंग द फ्रीडम while giving the मैसेज दिया था उन्होंने कि टू द अमेरिकन कांग्रेस को कि 4 मेन पॉइंट्स जो है वो हमें चाहिए विद द इंटेंशन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, पीस एंड सिक्योरिटी. फर्स्ट वाज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इकोनॉमिक फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम फ्री फ्रॉम फियर. राइट टू फ्रीडम, कोई भी डर के बिना हम यहाँ पर रह सके. Later the President Roosevelt and the British Prime Minister Churchill prepared a 8-point agreement while they were on the ship Atlantic Ocean. अब ना प्रेसिडेंट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो एंड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 8 पॉइंट्स का एक अग्रीमेंट बनाया था ऑन द शिप इन द अटलांटिक ओशन विच केम टू बी नोन एज द अटलांटिक एग्रीमेंट. उसका नाम भी अटलांटिक एग्रीमेंट कर दिया था क्योंकि वो अटलांटिक ओशन पे जब वो शिप में थे तब उन्होंने ये 8 पॉइंट्स का एग्रीमेंट साइन किया था. द एग्रीमेंट इंक्लूडेड द मैटर्स लाइक मेंटेनिंग फ्रीडम एंड सोवरेनिटी ऑफ एवरी नेशन. फ्रीडम है, सोवरेनिटी है, सारे नेशंस को ये मिलना चाहिए. पीस, सिक्योरिटी एंड सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर एंड डिसआर्मेंट. पीस, सिक्योरिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर एंड डिसआर्मेंट. जितना हो सके ये आर्मी वाला पार्ट कम करो. Then the foreign ministers of Britain, America, Russia and China met in Moscow for the world peace, which came to be known as the Moscow Declaration. अब फॉरेन मिनिस्टर ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया एंड चाइना के वो मॉस्को में मिले थे. वहाँ पर उन्होंने बनाया एक जिसको बोला गया था मॉस्को डिक्लेरेशन. इन नवंबर 1943 these 3 superpowers led a conference in Tehran. The representatives of 50 nations prepared the agreement for the United Nations at Washington, September 1944. 50 nations representatives थे उसके. And the agreement for the United Nations at Washington was made.
On October 24, 1945, the 51-member nation declared the establishment of United Nations. This is an objective. When was the United Nations established? That is on 24th of October 1945 with the 51 member nations. India also was a part of it. On 24th of October celebrated as United Nations Day all over the world. Again, it is an objective. Presently 193 nations are the members of United Nations. Presently अभी 193 nations उसके members हैं United Nations के. Now next is the organs of United Nations. United Nations के organs क्या है, कौन से departments हैं उसके. The structure adopted by the United Nations to achieve the aims is in 6 organs. main 6 organs हैं. General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice and Secretariat. International Court of Justice is situated in Hague in Netherlands. All the other councils are situated in New York, America. इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस का जो उनका ऑर्गन है या एक डिपार्टमेंट है वो हैग्यू में है, दैट इज इन नीदरलैंड्स. और बाकी सारे जो काउंसिल्स हैं दे आर सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, अमेरिका. नाउ द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ये जो ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के, उनकी एक्टिविटीज क्या है, वो काम क्या करते हैं. फर्स्ट इज द जनरल असेंबली. द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज द जनरल असेंबली. इट इंक्लूड्स द रिप्रेजेंटेटिव्स और ऑल द मेंबर नेशंस. सारे जो नेशंस हैं उनके मेंबर्स हैं, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उसमें हैं. एवरी नेशन कैन सेंड मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव्स टू दिस. हर एक नेशन के 5 रिप्रेजेंटेटिव जनरल असेंबली में हो सकते हैं. बट ड्यूरिंग द इलेक्शन ओनली 1 वोट विल बी ईच कंट्री इज काउंटेड. मतलब आपके 5 हैं, एक कंट्री का अगर 5 रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन वो 5 का एक ही वोट गिना जाएगा, तो 5 के 5 वोट नहीं आएंगे, हर एक कंट्री का एक वोट गिना जाएगा. इट कैन डिस्कस, एडवाइस, सजेस्ट और रेकमेंड ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस. यहाँ पर आप अपनी एडवाइस दे सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, अपने सजेशंस दे सकते हो अबाउट द मैटर्स रिलेटेड टू द इंटरनेशनल रिलेशंस. किस तरह बढ़ाया जा सकता है, किस चीज़ को कम करना चाहिए, किस तरह का उसको आगे लेके जा सकते हैं. इट एक्सेप्ट द बजट प्रेजेंटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल. और जो बजट है जो सेक्रेटरी जनरल बनाता है वो उसको भी एक्सेप्ट करता है. एवरी ईयर एंड एलोकेट्स द एक्सपेंसेस. इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड द सोल्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द नेशंस. हर साल वो ये ट्राई करते हैं कि वो हमेशा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो नेशंस फेस ऑन कर रहे हैं उसको किस तरह से, इसके सोल्यूशन, उसके क्या रास्ते हम निकाल सकते हैं ताकि कम से कम लोगों को ये प्रॉब्लम्स फेस ऑन करना पड़े. ह्यूमन राइट्स, डिसआर्ममेंट ऑन द अदर मैटर्स. डिसीजंस आर टेकन बाय द 2/3 मेजॉरिटी इन जनरल मैटर्स. जो डिसीजन होता है वो 2/3 मेजॉरिटी के हिसाब से जाता है. नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी काउंसिल. This is the most important organ of the United Nations. There are 5 permanent members in this. That is America, Britain, France, Russia and China. ये जो हैं वो 5 permanent members हैं Security Council के. Other 10 countries are not permanent members. बाकी के जो 10 हैं वो permanent नहीं हैं. They are elected for the term of 2 years by the General Assembly. हर 2 साल में उनका रिटायरमेंट हो जाता है. दिस काउंसिल एंजॉयज द ट्रिमेंडस पावर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. ये जो है पावर्स ये ज़्यादातर किस में काम करता है, इंटरनेशनली पीस और सिक्योरिटी बनी रहे. इट सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड डिस्प्यूट्स ऑफ द नेशंस पीसफुली थ्रू नेगोशिएशंस एंड मेडिटेशंस. अगर कुछ नेशंस में प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनको नेगोशिएट यानी बैठ के बात करके उसका सोल्यूशन वो लाते हैं. व्हेन एनी वन परमानेंट मेंबर डज नॉट वोट इन सपोर्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल मैटर इट कैन नॉट टेक अ डिसीजन ऑन दैट. अगर 5 जो परमानेंट मेंबर्स थे, 1 परमानेंट मेंबर डज नॉट वोट, अगर एक भी मेंबर उसने वोट नहीं करता इन सपोर्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल मैटर, इट कैन नॉट टेक अ डिसीजन, वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा.
This power of the 5 permanent members is called the veto or right to deny. इस पावर को बोला जाता है वीटो पावर और राइट टू डिनाई. आप इस चीज को लिए ओपोज कर सकते हो. रशिया हैज यूज दिस वीटो पावर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. रशिया ने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये वाला पावर यूज ऑन किया है. नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल. The social council, this council is also called the ECOSOC, Economic and Social Council. The General Assembly appoints of its retiring members for 3 years. This council tries to raise the standard of living of the nation. जो लोगों का standard of living है वो बढ़ाने के लिए काम करता है. Of the world, without any base of religion, caste, कोई भी religion caste के differences के बगैर. This council and its sub councils work all over the world. ये जो काउंसिल है ये भी और इसके सब काउंसिल्स हैं. आप नीचे पिक्चर्स देख सकते हो. FAO, यूनिसेफ है, ILO है, WHO, IMF है, यूनेस्को है. ये उसके सब कंपोनेंट्स हैं. ये सब काउंसिल हैं जो इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं. WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कई बार फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं. वर्क्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल. WHO हम डालते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है. IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्क्स टू एस्टैब्लिश द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. अगर कोई भी नेशन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को काम करता है ये. FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज एंड रेज द न्यूट्रिशन लेवल. ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्क्स टू प्रोवाइड राइट्स एंड जस्टिस टू द लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड. पूरी दुनिया के जो लेबरर्स हैं उनके लिए ये काम करती है. यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड नाउ, उसको अब इस तरह बोला जाता है. अंडरटेक्स द चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड एंड एजुकेशन. ये डिपार्टमेंट स्पेशली बच्चों के लिए काम करता है. Next is the UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, works to improve the cooperation between the nations by removing the illiteracy, raising the standard of living people. Illiteracy, अनपढ़, कम करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको एजुकेशन देना. Through education, providing the justice, education, science and cultural resources. उनको ऐसे resources provide करते हैं जिससे वो अपने नेशन में एजुकेशन बढ़ा सके, जस्टिस हो सके. साइंस और कल्चरल रिसोर्सेज वो उनको प्रोवाइड करते हैं. Besides this, there are sub councils and regional councils which undertake these various activities. Next is the trusteeship council. There are 5 permanent members in the nations. In this council, the representatives selected by the General Assembly are included over here. It oversees the matters pertaining to the nations that have not acquired independence or are in under some provisions mandate. Also, nations defeated in the Second World War as well as social, economic, political development. Trusteeship Council क्या करता है? There are 5 permanent members in this. 5 permanent members हैं इस council में. Now they are the representatives selected by the General Assembly. General Assembly उनको select करता है. And they look over the matters. वो किस पर ध्यान देते हैं? Matters pertaining to the nations that have acquired independence, जिनको independence मिल चुका है, और यहाँ कुछ अभी भी नेशंस ऐसे हैं जो किसी फोर्स में अभी भी दबे हुए हैं. एंड द नेशंस दोज हु आर डिफीटेड इन द वर्ल्ड वॉर 2, उनके लिए सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डेवलपमेंट लाने के लिए ये ट्रस्टीशिप काउंसिल काम करता है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन द सिटी ऑफ हैगी, नेदरलैंड्स. देयर आर 15 जजेस इन इट हु आर अपॉइंटेड फॉर 9 years. 15 जजेस होते हैं और 9 साल का उनका टाइम पीरियड होता है. इट सॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन द नेशंस एंड गिव्स द वर्डिक्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स प्रेजेंटेड बिफोर इट एंड गिव्स द लीगल एडवाइस. कोई भी नेशंस के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाता है या कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो जाता है तो इट गिव्स द वर्डिक्ट एंड वो अपना जजमेंट देते हैं ऑन द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड दे ऑल्सो गिव लीगल एडवाइस कि वो क्या कर सकते हैं उसके लिए. Next is the Secretariat. The office of the Secretary General of the United Nations is called the Secretariat. इसको one line में पूछा जाता है, what is a Secretariat? The office of the Secretary General of the United Nations is called the Secretariat.
The General Assembly appoints the Secretary General for 5 years. इसका टाइम टेन्योर कितना होता है? 5 years. Secretaries, administrators, assistants, translators and experts are also appointed with the help of the Secretary General. इनकी हेल्प के लिए ये वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं. The Secretariat is situated in New York. The United Nations has constantly been making efforts to establish the world peace, world unity and to achieve the dream of universal brotherhood. पूरे विश्व में भाईचारा बना रहे, पीस बनी रहे, यूनिटी बनी रहे, इस काम को लेकर यूनाइटेड नेशन कॉन्स्टेंटली वर्कआउट कर रहा है. So friends, here we end up with part 2. Thank you.